sign convention. It's called sign convention in trigonometry. Have you seen this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what is sign convention? Let's go through the statement first. Sign convention hai kya? Sign convention says that if you take any angle in first quadrant, then trigonometric ratios, all trigonometric ratios will be positive. तो अगर मैंने किसी भी एंगल का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है का साइन लिया, कॉस लिया, टैन लिया, तो या फिर इनके रेसिप्रोकल्स कॉट सेक और कॉसेक लिया, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे. फॉर एग्जांपल, if I take sine 10 degree, if I say angle is 30 degrees, angle is 45 degrees, angle is 70 degrees, जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में है, अच्छा ये बात हमको पहले से पता है, राइट? फॉर एंगल्स बिटवीन Sir, any acute angle, no? Any acute angle, right? But क्या हम acute angle के beyond सोच सकते हैं? Do we have angles in first quadrant which are not acute? Yes, sir. Yes, sir. 360 plus theta. Yeah. 360 we have plus or angles. minus We have- theta. Correct. अगर हम एक full rotation करके आते हैं 360 degrees का, and then we add an acute angle. For example, for the time being, suppose 40 मैंने add किया, this is 400 degrees. What is 400 degrees? One full rotation and then 40 degrees more. Now this is a very big angle, but don't you think this angle will also lie in first quadrant? The ray which will terminate after completing 400 degrees will terminate in first quadrant. Yes, Will it sir. happen? Yes, sir. So it will be also true for those angles. यानी हम acute angle तक limited नहीं, वो सारे angles जिनकी terminal ray first quadrant में आएगी after starting from positive direction of x-axis, उन सभी angles के लिए this convention holds good. Let's say मैंने जो rotation है वो rotation मैंने clockwise किया है, clockwise rotate करते हैं. तो clockwise rotate करने के बाद what do you think? For example, मान लो मैं यहाँ पे आके रुका, इसी लाइन पे आके रुका, ये एंगल कितना होगा बताओ? अगर ये एंगल स्टार्टिंग में 40 था, 360 में 40, Negative clockwise 320. 320. it is 320, but with a Negative negative sign, 320. minus 320 degrees, है ना? Minus 320 degrees. Yes, sir. So if I ask you what is tan of minus 320 degrees, maybe you do not know the value of this. Exact value क्या आएगी तुम्हें नहीं पता है, but now you know that tan minus 320 degrees will be positive. Why? Because the ray terminates in first First quadrant. quadrant. सर मतलब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई भी रोटेशन हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा. Yes, अगर ये first quadrant में terminate हो रहा है, तो आंसर हमेशा positive रहेगा. ठीक है ना? अब ऐसे सर ही tan आते हैं 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना? tan माइनस है. सर tan निकालना है तो सर tan 360 माइनस थीटा. tan 360 माइनस तो माइनस tan थीटा होता है, बट क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो माइनस उसको प्लस कर देगा, वापस वो tan थीटा बन जाएगा. tan 360 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. अच्छा, सिमिलरली इन सेकंड क्वाड्रेंट, यस, मोस्टली सेकंड क्वाड्रेंट को हम ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए जानते हैं, बट नाउ यू नो वी कैन कंप्लीट वन रोटेशन, देन वी कैन ऐड एन ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा, जैसे मैं अगर बनाऊं यहाँ पर ऐसा कोई एंगल, वो एंगल किस रेंज में होना चाहिए? अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्वियसली 90 से 180 के बीच में होगा, अदरवाइज 360 प्लस सम ऑब्ट्यूज एंगल, अदरवाइज नेगेटिव एंगल अगर जा रहे हो तो नेगेटिव भी ऑब्ट्यूज ही मैग्नीट्यूड होगा उसका. तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है उसको तो पॉजिटिव लिया जाता है, बट जो कॉस है वो नेगेटिव हो जाता है. और अगर साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो उनका रेशियो Tan भी नहीं यानी होगा. कि
tan जो है वो Negative नेगेटिव हो हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली उनके जो रेसिप्रोकल्स, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है और कॉस भी नेगेटिव है, tan And positive positive. Positive tan में। पॉजिटिव हो जाएगा। And will be दोनों का जो positive. रेशियो है tan वो पॉजिटिव है, करेक्ट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में Only cos Sin is negative, Only cos the positive. sin negative, साइन is cos नेगेटिव, positive, cos tan positive. negative. And negative. And tan negative. negative. that's why again their ratio tan will be negative. So if I summarize this all, right, all trigonometric ratios in first quadrant will be positive. Sin and cosec, obviously sin and cosec will be positive in second quadrant, tan and cot will be positive in third quadrant, and cos Negative, and no? sec ASTC. positive ना, third quadrant में tan will be positive, all Sir, other sir, tan मैं and बोल रहा cot हूँ will be ASTC. positive. हाँ हाँ, तो उसको याद करने के लिए लोगों ने नेमोनिक बना रखे हैं, लोग तरीके से याद रखते हैं, बट बहुत सिंपल है। वैसे इसको कैसे याद रखते हैं, कास्ट Add टू sugar to बोलते हैं। coffee. Add sugar to coffee. Yes, Add After sugar to school to college. एक मीनिंगफुल वर्ड कास्ट बना देते हैं लोग जैसे, लेकिन ये देखना ये कॉस से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है, CAST, Sir, या add फिर sugar to coffee भी है। So yeah, तो Add simply sugar to all coffee. sin tan cos, बस. ऑल All sin tan cos. नहीं सही है, तो डायरेक्ट हमको याद हो ही रहा है। इसके अलावा क्या बना सकते हो, कुछ क्रिएटिव सोचो, और क्या सोच सकते हैं। After school to college. अच्छा, ASTC का फुल फॉर्म, हाँ ठीक है, चलो ASTC का ऑल साइन टैन कॉस भी अच्छा था। Add sugar to coffee, after school to college, all science teachers are crazy, and बहुत सारे मतलब बना सकते हो, उसमें कोई there is no limit to our creativity। तो हम सोच सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन इसको याद करना जरूरी है। अब ये सब रट लिया, सब कुछ समझ लिया, आई थिंक फिजिक्स में ऑलरेडी बताया जा चुका होगा, बट व्हाट इज द रीजन, ऐसा होता क्यों, ये जानना भी जरूरी है ना, क्योंकि जब तुम्हें उसका लॉजिक, हालांकि है ये कन्वेंशन, ये एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का कोई प्रूफ नहीं होता, कोई डेरिवेशन नहीं होता, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। कन्वेंशन हम उसको फॉलो करना है, फर्स्ट में ऐसा है, सेकंड में ऐसा है, ऐसा बना दिया गया, बट वन कन्वेंशन कैन बी बेस्ड ऑन अदर, एंड यस, इन मैथमेटिक्स when we make one convention, then all other conventions we will try to give a reasoning based on the convention prior to the new convention। यानी अगर मैं एक ही कन्वेंशन के बेसिस पर दूसरा कन्वेंशन लाऊंगा तो उसको याद रखना, उसके लॉजिक से उसको याद रखना इजी रहेगा। तो इसका भी एक रीजन है कि ऐसा क्यों बनाया गया है, एंड दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट सिस्टम इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो तुमने कन्वेंशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, इफ यू टेक एनी पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोथ कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। इफ यू टेक द सेम पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन Negative positive. नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज Negative, नेगेटिव, Negative, एंड negative. फोर्थ क्वाड्रेंट में it Positive, is negative. plus Positive, negative. Plus negative. no, x coordinate is positive and y coordinate, so how these two are linked, ये दोनों linked कैसे हैं, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जरा GIF को ध्यान से देखो, ये देखो, यहाँ पर ये जो पॉइंट सर्कमफेरेंस पे घूम रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखना, ये वो सर्कल है जिसकी रेडियस जो है 1 है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1, और अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो एंगल है जो ये रेडियस फॉर्म कर रही है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos अल्फा कॉमा sin अल्फा लिखे हुए हैं, ऐसा क्यों भाई, सर कैसे मान लेकिन लें ये इसको? फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्यों नहीं जा रहा है, ये मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के पहले ही रुक जा रहा है। अरे वो अरे उसका वो ड्यूरेशन छोटा वीडियो है। है, वो फोर्थ में जाएगा, पूरा रोटेट होगा, मान लो, ओके सर। ठीक है। तो तुम्हें स्टिल सर वो जो थीटा मेजर कर रहे हैं सर, उसका जो अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस 1 है,
तो अपोजिट साइड जो है वो cos थीटा है और हाइपोटेनस साइन थीटा। सॉरी अपोजिट साइड sin थीटा है और क्योंकि हाइपोटेनस 1 है तो sin थीटा हो गया है ना सर। करेक्ट। ऐसे ही उसके एडजेसेंट साइड के साथ भी कर cos सकते theta adjacent. हाँ, तो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत डाउट हो कि वो कैसे cos अल्फा sin अल्फा हो रहा है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी देखो ध्यान। जैसे मान लो ये हमारा यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब इसकी रेडियस जो है 1, रेडियस इज 1। ये हमारा वही हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। और अब यहां से मैं एक रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं जो थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल है। इस पॉइंट को मैं पी अज्यूम कर रहा हूं। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर ये लेंथ 1 है तो, अगर ओपी 1 है तो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट पी के। देखो बहुत सिंपल सा काम है, तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू, इसको मैं क्यू बोल रहा हूं। तो मुझे पता है कि अगर मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आई नीड ओ क्यू बेस, राइट। मुझे बेस चाहिए एंड आई विल गेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ क्यू। देखो ना, अगर तुमने cos थीटा लिया इस ट्राइंगल में, cos in triangle OPQ, what is cos theta? It is OQ upon OQ 1. upon So 1. OQ is simply cos अपॉन theta. ओपी। It is simply cos theta, right? And what if you take sin theta? What will be PQ sin upon theta? 1. Yes, sir, PQ upon 1. Again, because hypotenuse is 1, so PQ, cos theta comma PQ sin theta. is y coordinate and that is why it is sin theta. So that is the reason यहाँ पे जो mentioned है ना, ये cos alpha sin alpha, इसका रीजन यही है कि जब भी ये अल्फा एंगल फॉर्म करेगा दिस पॉइंट इज ऑलवेज cos अल्फा कॉमा sin। एंड टू वेरीफाई दिस लुक एट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। ये पॉइंट अगर मैं ए बोल दूं तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर मैं इस कन्वेंशन को फॉलो करूं जो मैंने अभी देखा, ये जो OA लाइन है वो एक्स एक्सिस से किस एंगल पे है, 0। सो दिस मस्ट बी cos 0 degrees sin 0 degrees. Do we have the value of cos 0? Yes, it is 1. Do we have the value of sin 0? It is 0. Look, it is correct. This point A, where circle cuts x-axis, positive x-axis, is 1 comma 0. Let us check this point. This point is, let's say B. So according to this सर convention, सर क्या होना 1 चाहिए? 0 कैसे हुआ? भाई cos 0 1 होता है ना। नहीं सर, बट वो लाइन जो है उसके हिसाब से तो ओ अच्छा सर, OA 1 ही तो है, रेडियस है ना। ठीक है सर। OA is 1 ना। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बताओ, बताओ बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबको सबने पढ़ी हुई है, 0 comma 1. 0 0 कॉमा comma 1। जाएगा। बट अगर मैं अपना एक कन्वेंशन यूज करूं, देखो ये एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, व्हाट इज द एंगल, 90. 90 90। डिग्री। cos 90 sin 90. मस्ट बी cos 90 degrees sin 90 degrees। व्हाट इज cos 90? 0। व्हाट इज sin 0, 90? 1. 1 1 गेटिंग इट। अब अच्छी बात ये है कि अगर मैंने कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिया, ठीक है, मान लो ये पॉइंट P घूम के यहाँ पे आ गया और ये जो रेडियस आ रही है OP को ज्वाइन करते हैं, ये एंगल थीटा ही फॉर्म कर रही है, दिस एंगल इज थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos थीटा कॉमा sin थीटा ही रहेंगे। यानी कि जैसे मान लो ये पूरा एंगल 120 डिग्रीज का है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, cos 120 sin 120। अगर मान लो हमने हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मान लो मैं इस पॉइंट पे आ गया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट C, तो इस थियरी के हिसाब से ये एंगल कितना है, हाफ रोटेशन 180 डिग्रीज। 180 तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, इट शुड बी cos cos 180 180 डिग्री cos कॉमा pi sin 180 डिग्री। कॉमा sin pi। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, अगर पता है तो cos pi की वैल्यू -1 होती है और sin pi की वैल्यू 0 होती है। 0 होती है। समझे। सर वो जो आपने P लिखा है वो -1/2 comma 3 √3/2 होगा।
अगर वो 120 है तो यस, अगर वो 120 है तो यूर राइट। अगर मान लो हम रोटेट करते हुए 3/4 रोटेशन में कंप्लीट कर लिया, 270 डिग्रीज पे आ गए, तो वैसे अगर इस पॉइंट को मैं डी बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा -1 0 को -1। बट हमारे कन्वेंशन के हिसाब से देखो, हमने ये एंगल कितना कंप्लीट कर लिया, ये एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 270 डिग्रीज। 270 डिग्रीज। हाँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? cos 270 कॉमा sin 270। sin 270। sin 270। so that means cos 270 0 होता है और sin 270 -1 होता है। -1 सर Okay, आपने तो- 180 डिग्री में cos पाई और sin पाई क्यों लिया? इन रेडियंस। अरे तुमने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था? रेडियंस एंड डिग्रीज, डोंट यू नो पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज, अच्छा ओके सर। राइट? मैंने देखो डिग्रीज मेंशन नहीं किया, इट इज नॉट पाई डिग्रीज। पाई डिग्रीज विल बी लीथल यार, पाई डिग्रीज तो पता नहीं क्या होगा, मतलब बहुत ही मतलब इरेशनल नंबर है। वैसे भी एंगल तो वैसे भी एंगल है, ऊपर से इरेशनल। तो दिस इज पाई, पाई इन रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यस नाउ हाउ दिस कनेक्ट्स? ये चीज ऊपर जो कन्वेंशन उसको कनेक्ट कैसे कर रही है? देखो बहुत सिंपल हो गया ना। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, sin थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हो गए, अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हो जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर cos sin Yes, sir. पॉजिटिव है तो उनका रेशियो tan भी पॉजिटिव है और उनके रेसिप्रोकल्स भी पॉजिटिव है कि नहीं? कैन यू अप्लाई दिस? Yes, sir. कैन यू अप्लाई दिस इन सेकंड क्वाड्रेंट? देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट P लिया जाए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है cos थीटा, sin थीटा, इन सेकंड क्वाड्रेंट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कन्वेंशन सेज व्हाट? ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। Second That's why quadrant sin- में it will range from 0 to -1, comma 1 0 to 1. Correct, but don't talk about range for now. You just see that y coordinate will be positive and x coordinate will be negative. So that means what? Sin theta is positive and cos theta is negative. Okay. Correct? अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं और इस पॉइंट को लिखते हैं cos and sin, बोथ थर्ड नेगेटिव। क्वाड्रेंट में both are negative. Both are That's negative. why sin is negative, cos is negative. Fourth quadrant में, if I take a point, x coordinate will be positive and y coordinate, any cos theta is Negative. positive, sin theta is negative. Now these two are linked, right? हमने इन दोनों को लिंक कर दिया, है कि नहीं? तो जो साइन कन्वेंशन तुम रटने की बात कर रहे थे, ये सब में भी नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए रटना होगा उनको, लेकिन हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी रटा हुआ है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कन्वेंशन। सो ट्रिग्नोमेट्री का कन्वेंशन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड है, ठीक है? सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, इफ यू अंडरस्टूड, यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज समझ चुके हो तो ठीक है, कोई बहुत जरूरी भी नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना। आई थिंक फिजिक्स में हम इसका यूज कर रहे होंगे, एंगल्स तो बड़े आ रहे होंगे उसमें। फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज शुरू हो गया होगा। सर अभी तो नहीं नहीं, सर, अभी तो नहीं, अभी तो एक दो लेक्चर तुम्हारा में start ये हुआ शुरू हो जाएगा। डेरिवेशन इज गोइंग ऑन। अच्छा, सर डेरिवेशंस किया पर चेन वो रूल हुआ है। कन्वर्शन नहीं किया अभी तक। ठीक है, ओके, चलो। तो कन्वेंशन सबको समझ में आ गया भाई? अब तुम याद रखोगे? यस सर। हाँ सर। ऐसे Yes, कैसे sir. मान लें? पहले देखो तुम कितनी जल्दी उसका आंसर देते हो। तुम्हें केवल साइन फाइंड करना है, ठीक है? फाइंड द साइंस ऑफ, एंड चलो विल स्टार्ट विद श्रेयस। श्रेयस, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए डेडिकेटेड है भाई। तुम्हें साइंस सर फाइंड करना आपने है, क्वेश्चन में साइन लिखा है ना? SIGNS, SIGNS, फाइंड द साइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो, तुम्हें बस ये बताना है, ठीक है? टेल मी व्हाट इज Yes, sir. साइन, व्हाट इज द साइन ऑफ साइन 130 डिग्रीज? आराम से सोच कर श्रेयस, है ना? तुम्हें केवल बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और बाकी लोग भी सोच लो भाई, उनके Yes, ऊपर भी। sir.
एवरेज रेस्पॉन्स टाइम इसका सर ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सर ये होना चाहिए पॉजिटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ऐड इसका शुगर पॉजिटिव टू होगा। कॉफी शुगर सर है आप सेकंड वाला रोटेशन भी बता दो। सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो साइन पॉजिटिव होता है एएस। हाँ पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। सर डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर यस सर। यस सर आ रही है। ये सर पॉजिटिव है नेटवर्क सर, आज जो है क्योंकि ना, वो पॉजिटिव है। साइन 90 से सर ग्रेटर है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना? यस सर। यस यस सर पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, उमर बताएगा। उमर पॉजिटिव क्यों है बताओ, व्हाई इट इज पॉजिटिव? बिकॉज़ द एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, और अच्छे। एक मिनट, अरे जल्दी यार ओपन कराओ यार, बहुत पक गया हूं मैं सीरियसली इस जूम से यार। साइन 130 is positive because the Is angle in lies the in second quadrant and sine is lies in positive there. second quadrant, right? Now somebody tell me, not someone, I want Anjali. Anjali will tell me what is the sine of cos 220 degrees. Anjali, what is cos 220? Come on, I want. सर सर कॉस 220 नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, यस सर नेगेटिव होना नेगेटिव चाहिए। सर। यस सर नेगेटिव होगा। हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव। सर Third थर्ड क्वाड्रेंट में quadrant. आता है तो यस थर्ड सर। यस सर थर्ड नेगेटिव। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ओके अंजलि, क्या हुआ? नेटवर्क इशू? यस सर। अरे कौन बोल रहा है? श्रेयस बोल रहा है सर। यस बोल रहा है सर। मैं अंजलि बोल रहा हूँ यहाँ से, तू क्यों श्रेयस बोले जा रहा है उसमें? मैंने तो आपसे मुझसे पूछा। अच्छा अच्छा, है नहीं मीटिंग वो, नेटवर्क। ओके चलो भाई, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है सदगुण के लिए। सदगुण, यस सर। I need an impressive response time, fellas. Come on. Tan of 3. Come on, tell me. Tan 3. पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यस सर फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव सर। नेगेटिव। सर रेडियंस में और पाई से कम है। हाँ 3 डिग्री नहीं। देखो भैया अभिनव क्या बोल रहा सर है? सॉरी नेगेटिव ही होगा सर। नेगेटिव सर। यस सर नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में। मैंने कब बोला कि ये डिग्रीज में है सदगुण? यस मैं लिखा डिग्रीज नहीं ना, ये रेडियंस है भाई। व्हाट इज 3 रेडियन अप्रोक्सीमेटली? याद है? Less than pi. पाई रेडियंस इज 180 नहीं सर मैंने 90 डिग्रीज को ना गलती से पाई मान लिया, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया। क्या? 90 डिग्रीज को ना पाई लिया, 90 डिग्रीज पाई बाय 2 हुआ ना। अच्छा अच्छा। तो भाई 180 डिग्रीज जो है ये हाफ रोटेशन, ये पाई रेडियंस है और पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 रेडियंस है वो स्लाइटली छोटा है इससे, है ना? तो ये एंगल क्या हो, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर ये एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आंसर इज नेगेटिव। तो रेडियंस का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि रेडियंस की कैलकुलेशन। अच्छा एक और तरीका है, हमने ये भी तो पढ़ा था कि 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, 57 डिग्रीज। यस है ना? तो 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री। तो अगर तुम्हें
कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं पसंद आ रही है तो इतनी तो कर सकते हो ना। अब मैंने बोला 3 रेडियंस 60 तो मान लेते हैं सर, थोड़ा कम मान लेते हैं उससे। 170 समथिंग है ना, ये मिल गया। So this will be negative. Okay. Okay. What about cot 7? पॉजिटिव सर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर, पॉजिटिव होना चाहिए। Positive क्वाड्रेंट रहेगा। में एंड हो रहा है। पॉजिटिव So, सर। Sorry. Advik will try. Advik, tell me. सर Positive or पॉजिटिव होगा negative and सर why? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एंड हो रहा है फुल रोटेशन करके। One full rotation is 2 pi. क्यों भाई इसने हर्ट क्यों बना दिया? Okay. One full rotation is 2 pi. And 2 pi is approximately what? 6.28। 6.28। सर 6.28 के आसपास। यस अब 6.28 से हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हम ऑब्वियसली 7 में पहुंच जाएंगे। यस सर। अब ये थोड़ा सा आगे जाके हम कहीं आगे तो नहीं पहुंच जाएंगे, नहीं। पाई बाय 2 जो है 1.57 अप्रोक्सीमेटली, तो ऑब्वियसली 7 जो है वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो आंसर इज पॉजिटिव। यस गेटिंग दिस? यस ओके, चलो एक और ट्राई करते हैं। व्हाट अबाउट sec -6? sec of -6, सोच के बताओ। सब फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। में आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। पॉजिटिव। -6 का मतलब हुआ that this rotation is 0.28 रेडियंस के बराबर हो जाएगा उसका वैल्यू। तो अगर मैंने पूरा फुल रोटेशन किया, नाउ दिस इज -2 pi, दिस इज अप्रोक्सीमेटली -6.28। तो 0.28 अगर हम इसमें ऐड कर दें, कम चले, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेंगे क्यों भाई? यस -6 तो इतना ही रहेगा ना। यस सर। तो वापस से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया एंड दैट इज व्हाई आंसर इज पॉजिटिव। स्टिल पॉजिटिव। तो ये पांचों एग्जांपल सबको समझ में आए भाई? रेडियंस Yes. वाली कैलकुलेशन ध्यान Yes, रखना है ना, रेडियंस बहुत डिफरेंट है। हमारा जो परसेप्शन है 1 डिग्री का, 1 degree is a very small angle, yes, but 1 radian is not a very small angle. 1 radian is close to 57 degrees. 57 डिग्रीज। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। So this was sign convention, and second point for today is allied angles. कुछ लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम फिर से पढ़ रहे हैं। What are allied angles? See, सम एंगल माइनस और प्लस थीटा। not some angle, not any angle. Allied angles में we always take multiples of 90. Why multiples of 90 are special? Because they are the They are complementary. their axes are all the axes are perpendicular to each other. That's Correct. Sine converts to cos. In case of 90 सर minus एंड theta, ये उनसे हमने- कुछ प्लस या माइनस करेंगे तो हम एक मतलब क्वाड्रेंट में आएंगे। हाँ, तो देखो जैसे कि एक अलाइड एंगल फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। आई होप किसी ने स्किप ना किया हो। जो थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स है 10th में, उसमें तुमने ये तो पढ़ा ही होगा। और क्या पढ़ा हमने उसमें? sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta equal to sin theta. कि 90 माइनस थीटा में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं क्या फॉर्मूला लिखूं? साइन विल कन्वर्ट टू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट टू साइन। tan will convert to cot and cot will convert to tan. Cosec to sec. Will convert to cosec and cosec will convert to sec. What is the reason? Very simple. If theta is acute in this right angle triangle, if this angle is theta, then the other angle is complementary. It should be 90 minus theta, pi by 2 minus theta, and now if I want to find sine
90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जो ऑपोजिट साइड है वो थीटा के लिए एडजेसेंट, so it will be a by h which means cos theta adjacent upon hypotenuse, है ना। 90 माइनस थीटा के जो ऑपोजिट साइड है वो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड। तो बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ है, बट कैच ये है, कुछ लोगों के लिए नई इंफॉर्मेशन ये होगी that this is true for every theta. That means मैं थीटा की वैल्यू यहां पे कुछ भी रख दूं, it will remain true. It is not limited to acute angles only. For example, देखो ये सबने पढ़ा है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। For example, sin 30 is cos 60, sin 90 is cos 0, सबको पता है। Now what if theta equals to minus 30? Will it work? Will this formula, will this relation hold? Yes, sir. Yes, it will. -30. Yes, yes. For Sin minus 120 हो जाएगा। degrees. अगर तुमने यहाँ पे रखा तो देखो क्या आएगा, sin 90 minus 30, it will become sin 120, and होता ही this will be negative है। cos minus 30. You just check the signs of these two. इनका sign check करके देखें। 120 will come in second quadrant, it will be positive. Minus 30 will come in fourth quadrant, it will also be positive. Right? तो क्योंकि हमने नेचुरल एक्सटेंशंस किए हैं, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन और बाकी चीजें नेचुरली आगे प्रोसीड की हैं, तो ये जो फॉर्मूले हमने देखे हैं फॉर एक्यूट एंगल्स अभी तक, these formulas will work for every theta. Remember, ये फॉर्मूले सभी एंगल्स के लिए काम करते हैं। दो अभी इसकी वैल्यू निकालना बाकी है, अभी हम इनकी वैल्यूज निकाले हैं। तो π/2 माइनस थीटा वाली चीज सबको ऑलरेडी पता होगी, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो तुम्हारे लिए नया हो सकता है, ध्यान से देखना ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है सिंपली माइनस थीटा। व्हाट इज माइनस थीटा? सर जो आपने cos -30 लिखा है वो तो नेगेटिव होना चाहिए ना। क्यों? मतलब अभी आप पढ़ाएंगे नेगेटिव थीटा के लिए, तो नेगेटिव थीटा के लिए तो cos -1 आ जाता है। नहीं, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 के साथ है ना, 90 Clockwise है। माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। माइनस 30 हम जब करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? मुझे हाँ सर, cos के लिए नहीं होता नेगेटिव। यस सर, ओके। कॉस के लिए पॉजिटिव होता है ना, Yes. समझा? हाँ अब आते हैं माइनस थीटा पर, और केवल विजुलाइज करने के लिए मैं थीटा को अभी फिर मैग्नीट्यूड में एक्यूट मान रहा हूं, केवल समझाने के लिए। बट रिमेंबर, ये फॉर्मूलाज दिस विल वर्क करेक्ट फॉर एवरी थीटा। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा सही होगा। व्हाट इज माइनस थीटा? माइनस थीटा इज एन एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड थीटा, बट द रोटेशन वाज क्लॉकवाइज। तो ये एक एंगल माइनस थीटा कंसीडर किया। से दिस पॉइंट इज P, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज Q, करेक्ट। अगर मैंने एंगल थीटा लिया होता तो देखो हम यहां पहुंचे होते। Let's call this point P dash and this angle plus theta. So what is the difference between plus theta and minus theta? There is no difference actually. Magnitude same ही है, angle same है। माइनस थीटा दिखाकर हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि जो रोटेशन का डायरेक्शन है वो अभी क्लॉकवाइज हो गया। पहले वो एंटी क्लॉकवाइज था, अभी ये क्लॉकवाइज हो गया। इट विल नॉट मैटर मच। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू कि भाई द टू ट्रायंगल्स हियर, दो ट्रायंगल्स हमको दिखाई दे रहे हैं, आर दे कॉन्ग्रुएंट? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल OQP is definitely congruent to triangle OQP dash। थीटा और माइनस थीटा का मतलब ये नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट, का मैग्नीट्यूड सेम है ना। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट? ठीक है ना। अब मान लो कि ये साइड O है थीटा के ऑपोजिट, और ये A है और ये H है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स सिंपली हो जाएंगे A, O। X coordinate is A and Y coordinate is O।
तो इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a कॉमा नेगेटिव o। यस, ये माइनस ओ क्यों है सबको पता है, बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज a कॉमा माइनस o। सो व्हाट इज माइनस o? ये जो है ना, ये जो लेंथ है उसको हम माइनस o से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कोई लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं ना, लेंथ तो पॉजिटिव ही। ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? डायरेक्शन बता रहा है कि अगेन। जो, हाँ, जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस, है ना? नाउ this is hypotenuse, this is hypotenuse. If I ask you, what is sine of minus theta? Sine minus theta क्या होना चाहिए? माइनस साइन थीटा। The reason is minus theta के opposite o नहीं है, minus theta के opposite minus o, so it should be minus o by h. What is o by h? O by h is Theta. sine theta, so it should be minus sine theta. At the same time, if I ask you what is cos minus theta, what is cos minus theta? Cos minus theta, look, the adjacent side remains same. Adjacent side a ही है. This is a by h, and for that reason, cos minus theta will remain same as cos theta. जैसे ऊपर जो हमने एग्जांपल देखा अभी cos minus 30. What is cos minus 30? Cos minus 30 degrees is same as cos 30 degrees. यानी कि आंसर √3/2 ही आएगा, समझे? Sir, Cos- take that h positive is also convention. Yes, h is simply distance between O and P. ये it is neither in direction of x nor y, so it is always positive. Sin minus theta और cos minus theta अगर मैं निकाल लिया, dividing these two, I can find tan minus theta. Yeah, triangle से ही minus O by A is minus tan theta. Hello, sir. That means मैं बस ये कह रहा हूँ कि sin का sin ही आया आंसर, cos का cos सर आया। बीच में आपकी वॉइस सर, आप सर बीच में चले गए थे सर। आपकी वॉइस आपकी चली गई। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है ना? हाँ सर। तो मैं ये कह रहा था कि 90 डिग्रीज वाले केस में, 90 माइनस थीटा वाले केस में साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ था, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, बट 0 डिग्री में, आई मीन 0 माइनस थीटा में ऐसा नहीं हुआ। साइन साइन ही आया, कॉस कॉस ही आया, टैन टैन ही आया। साइन उसका जरूर चेंज हो गया, आई मीन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आया, बट ऐसा नहीं हुआ कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया हो या कॉस साइन में कन्वर्ट हो गया हो, है ना? इस चीज तुमने ऑब्जर्व किया। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। तुम ऑब्जर्व कर लोगे, याद करना बहुत इजी हो जाएगा। सबको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? यस सर। तुमसे पूछूं ये क्वेश्चन, कुमार, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan minus 45 डिग्रीज, क्या आंसर होगा तुम्हारा? Negative tan 45, -1. -1. -1. It is -1 because tan minus theta is minus tan theta, and that's why it is minus tan 45 -1. ये बात समझ में आ सर, गई? वो आपने टीयर टू टीयर वो सर वो triangle टीआर दिखाया टू क्या? टीआर वो क्या लिखा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस केस में चेंज नहीं हो रहा है। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन केस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन कन्वर्टेड टू कॉस, कॉस टू साइन, टैन टू कॉट, कॉट टू टैन, सेक टू कॉसेक एंड कॉसेक टू सेक, ऐसा हुआ था ना? बट इन केस ऑफ माइनस थीटा ऐसा नहीं हुआ। माइनस थीटा वाले केस में क्या हुआ? साइन का साइन ही रहा, कॉस का कॉस ही रहा, टैन का टैन ही रहा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो था इट रिमेन्ड सेम। हाँ, वो अलग बात है कि कभी प्लस आया कभी माइनस आया, और वो चीज हम बाद में देखेंगे कैसे हम डिसाइड करेंगे प्लस माइनस। बट ये बात तो तुमने ऑब्जर्व की ना
कि माइनस थीटा में साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ, साइन साइन ही रहा, ये लिखा है मैंने। समझ में आई बात? हेलो यस सर। Yes, sir. Sir, yes. और तीसरा पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज 90 प्लस थीटा और π/2 प्लस थीटा। I want to find sin π/2 plus theta, sin 90 plus theta. So 90 comfortable. What is sin 90 plus theta? पॉजिटिव साइन Cos Positive? साइन थीटा माइनस Minus cos theta. Positive रहेगा पॉजिटिव कॉस cos theta. देखो 90 माइनस थीटा हमको पता है, मैं यहाँ पे 90 प्लस थीटा पूछ रहा हूँ। Now without any अल्फा इक्वल टू नेगेटिव थीटा ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। विदाउट यूजिंग एनी कन्वेंशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सेस, कुछ बिना यूज किए हुए, बेस्ड ऑन प्रीवियस रिजल्ट्स जो हम डिराइव कर चुके हैं, वी कैन यूज देम टू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर दिस sin 90 प्लस थीटा। कैसे? हमको 90 माइनस थीटा पता है और ये 90 प्लस थीटा है, तो क्यों ना इसको माइनस ऑफ माइनस करके, भाई प्लस है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा वापस, कॉस थीटा हो जाएगा। एंड लेट माइनस थीटा इक्वल्स टू अल्फा। माइनस थीटा को मैंने अल्फा रख दिया, तो क्या आएगा sin 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज sin 90 माइनस अल्फा? cos alpha. Cos alpha. Cos alpha, So cos minus theta. which is cos minus theta. Which is cos And what is Is equal to cos cos minus theta? ये देखो Cos अभी हमने theta. पढ़ा है, cos minus theta is simply plus cos theta. So answer is plus cos theta. Easy था ना? Sin Yes, सर इसको वो हाँ, sir. 90 बता सकते minus हैं क्या? theta is, हाँ? क्या हुआ सर? सर आप उसको उस पे बता सकते हैं क्या ग्राफ पे? ग्राफ पर देखने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो 90 प्लस थीटा है वो कुछ ऐसा एंगल है। अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, ठीक? 90 प्लस थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। यस अब ऑब्ट्यूज एंगल को तो हम ले नहीं सकते, ऑब्ट्यूज एंगल को हम नहीं ले सकते किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम उसका सप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, ठीक है? हम उसका सप्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, विच विल बी व्हाट? 90 प्लस थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर? 90 माइनस, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है? इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल क्या है? ये एंगल थीटा है। इतनी बात समझ में आई? हाँ, सर। है ना? अब थीटा के ऑपोजिट साइड को O और इसको A और इसको H लिखते हैं, बट ये तुम्हें पता है कि दिस टाइम इट विल बी माइनस O। इसको माइनस O क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर एक्स नेगेटिव। X axis is negative. एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डिस्टेंस चल रहा है, ये जो पॉइंट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। नाउ y sin 90 प्लस थीटा इज सेम एज प्लस cos थीटा। ध्यान से देखो, इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सी? इस एंगल के ऑपोजिट साइड A। सो व्हाट इज sin 90 प्लस थीटा? इट इज A by H, और A by H क्या होता है? cos थीटा। दैट्स व्हाई इट इज प्लस cos थीटा। बट इफ यू वांट टू फाइंड cos 90 प्लस थीटा, अगर तुम्हें cos 90 प्लस थीटा निकालना है, देखो what will be cos 90 प्लस थीटा? माइनस O by H। cos 90 प्लस थीटा इस एंगल के Minus sin ऑपोजिट theta. साइड A थी और एडजस्ट Sin minus theta. राइट, इट इज माइनस O by H, माइनस साइन यानी माइनस साइन थीटा। तो जिन लोगों को ग्राफ की हेल्प से समझना हो उनके पास ये रास्ता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि उससे बेटर है तुम्हारे लिए, इससे बेटर है तुम्हारे लिए ये प्रूफ समझने के लिए। और सबसे इजी काम तो है उसको याद रखना, इसको हम याद रखेंगे, कोई तुमसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। अलाइड एंगल फॉर्मूले के लिए इसलिए कि वैल्यूज जो एंगल्स की है वो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और देखो एक बार तुम्हें cos 90 प्लस थीटा मिल गया, अगर तुम्हें cos 90 प्लस थीटा मिल गया तो
दोनों को डिवाइड करो एंड व्हाट विल बी tan 90 plus theta, नेगेटिव tan थीटा। right? Cos theta upon minus sin theta minus cot. Cot. यस सर, नेगेटिव कॉट। तो यहां पर भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि साइन कन्वर्ट्स टू कॉस एंड कॉस कन्वर्ट्स टू साइन, tan converts to cot and cot converts to tan, sec will convert to cosec and cosec will convert to sec। ये फिर से वही हुआ 90 माइनस थीटा जैसे ही तो है, बट इस बार बस चेंज क्या हुआ, कुछ जगहों पे नेगेटिव साइन आया हुआ है। किस कहां पर नेगेटिव है? कॉस में नेगेटिव है, टैन में नेगेटिव है, और ये तो होना ही था ना। इस नेगेटिव साइन का एक लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? साइन कन्वेंशन। भाई 90 प्लस थीटा, इफ थीटा इज एक्यूट, विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, दिस विल बी पॉजिटिव, बट कॉस और टैन ये दोनों नेगेटिव होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ए नेगेटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड। देखो ना, बात समझ में आ रही है? भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मान लो क्वेश्चन पूछ जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ cot 150 degrees, what is the value of cot 150 degrees? cot 150 degrees क्या होगा? Cot 90 plus 60 लिख सकते हैं हम लोग तो minus tan 60। अब एक बात तो क्लियर है कि जो भी आंसर आएगा वो माइनस आएगा भाई। सर नेगेटिव tan आंसर 60 आएगा वो नेगेटिव minus tan 60 हो जाएगा सर। इक्वल टू नेगेटिव Minus tan 60. cot converts to tan, so minus tan 60 degrees, और tan 60 होता है √3, तो आंसर root 3 minus root 3। नेगेटिव √3। समझा ये? चलो एक और ट्राई करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec 120 degrees? सर 90 plus 30 minus tan 30 Sir, degrees minus हो cos जाएगा। 30. Minus cos 30. Sir, minus cos अच्छा 30. sorry, minus cos 30। Minus 2 root 3. माइनस Minus सर माइनस √3 नहीं by होगा 2. सर, पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों भाई, पॉजिटिव क्यों रहेगा? Positive क्या नहीं, वो positive minus हो जाएगा। 90 Positive minus रहता है in bracket sin। minus. पॉजिटिव रहता है साइन यानी कि कॉसेक। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, सेक पॉजिटिव नहीं होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव होता है भाई। अच्छा सर, वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। sec 90 plus 30 will be minus cosec 30। तुम लोग साइन क्यों बोल रहे हो? तुम लोग कॉस क्यों बोल रहे हो? समझा नहीं मैं। sec कन्वर्ट्स टू cosec यार, sec cosec में कन्वर्ट होगा ना। हाँ, cosec sorry 30 sir. क्या होता हाँ है? सर, यस Sorry. नेगेटिव हो गया। cosec 30 is 2, आंसर इज -2। getting this? समझ में आ रही बात? Yes, क्या sir. सभी कोई बात समझ में आ रही है? अब तुम ऑब्ट्यूज एंगल्स 120, 150, 135, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 135? टेल मी। अब सही से निकालना भी, टेक योर टाइम एंड टेल मी sin 135 डिग्रीज क्या होगा। पहले ही ये दिमाग में ले आओ कि ये 1 by पॉजिटिव होगा Sir, कि minus नेगेटिव। 1 by √2. minus plus 1 by 1 by root 2। सर पॉजिटिव Positive 1 by root 2। पॉजिटिव प्लस 1 माइनस की सर। मिस्टेक मत करो मैं, क्योंकि प्लस माइनस सबसे इजी था, हमने पहले ही पढ़ लिया है साइन कन्वेंशन। साइन 135 का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये हमको पहले से ही पता है। सर पॉजिटिव। सर पॉजिटिव होगा। Positive. 135 डिग्रीज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूज एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता, राइट? साइन 90 प्लस थीटा इज सिंपली cos थीटा, and cos 45 degrees is 1 by √2. Answer is plus 1 by √2. कोई बात नहीं, चलो स्टार्टिंग मिस्टेक होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हें साइन तो पहले से ही पता है, इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती यार। कुछ भी याद करने से पहले साइन कन्वेंशन सबसे इजी। हम एंगल देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो अगर मैंने कहीं बाई चांस मिस्टेक कर भी दी तो मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ ना यार।
कि हाँ यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस नहीं प्लस आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा के बाद अगर हम आ जाए 180 और 90 प्लस थीटा में, ये चीज हमने ऑब्जर्व की है, इसको ध्यान रखना। अब मान लो मैं आ जाऊं 180 माइनस थीटा पर, 180 माइनस थीटा या फिर कह लो पाई माइनस थीटा। तो व्हाट विल बी साइन 180 डिग्रीज माइनस थीटा? साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा? एक बार फिर हम साइन थीटा, ट्रायंगल बना के पॉजिटिव साइन थीटा। इसको निकालने के लिए 180 को हम ब्रेक करते हैं और इसको लिखते हैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा। इसको अगर मैं अभी फिर अल्फा अज्यूम कर लूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है साइन cos अल्फा हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। मैंने 90 माइनस थीटा को एक एंगल अज्यूम कर लिया अल्फा। अब बताओ कि साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है? ये हमने अभी cos डिराइव अल्फा। cos अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। एंड 0 अल्फा सर वो को हमने साइन अज्यूम किया था 90 माइनस थीटा। सर हो गया सर 9 साइन थीटा। एक मिनट, श्रेयस क्या बोल रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो ऐसा नहीं लिख सकते साइन 90 प्लस कॉस अल्फा? साइन 90 प्लस कॉस अल्फा, ये क्या है? सर क्योंकि कौन सा? सर वो सर 10th में वो एक लॉ था कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। हाँ सर ऐसा कुछ था उसमें। कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है नहीं ना? साइन 90 प्लस थीटा सेम है साइन 90 माइनस थीटा, दोनों ही कॉस थीटा होते हैं। खैर, यस सर। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है साइन थीटा। क्यों आंसर पॉजिटिव आ रहा है? कैन यू एक्सप्लेन? Sin is in the second quadrant. Because तो if सेकंड theta is क्वाड्रेंट में acute, पॉजिटिव if theta is acute, 180 minus theta is still lying in second quadrant. दूसरे क्वाड्रेंट में ही तो है, और अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। बट ऑब्जर्व करो कि 180 माइनस थीटा में साइन रिमेन्ड साइन, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ। Similarly, when you will try to find cos 180 minus theta, Negative cos अब अगर theta. ये बात तो कंफर्म्ड है कि cos cos ही रहेगा, क्योंकि साइन साइन रहा तो cos भी cos रहेगा। बट अब साइन क्या आएगा इसका? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। और दोनों को डिवाइड कर दो तो tan 180 तो tan भी नेगेटिव होगा। विल बी नेगेटिव tan थीटा, है ना? तो ये भी वो केस हुआ जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी था वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहा। इट वाज नॉट चेंज्ड। साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट हुआ, टैन कॉट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सेम रहा। राइट, तो ऐसे हम लिखते जा सकते हैं 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 90 के जो भी मल्टीपल्स हैं उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं। बट क्या तुमने कुछ ऑब्जर्व किया? हाँ सर, 90 डिग्री के साथ चेंज होता है और 0 और 180 के साथ चेंज नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्स एक्सिस से चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस से जाते तो चेंज होता है। गुड गुड। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आंसर्स क्या हैं। अगर तुम सारे आंसर्स को ऑब्जर्व करो, कुछ आंसर्स में साइन साइन है, केवल साइन को देखो, और कुछ केसेस में साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि साइन टैन में कन्वर्ट हो गया, टैन सेक में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। या तो साइन साइन रहा या फिर साइन कॉस में कन्वर्ट। किन केसेस में साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ? जब हमने 90 प्लस थीटा देखा या फिर ऑब्वियसली हमने 90 माइनस थीटा देखा। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है और ये फैक्ट ये है कि फॉर ऑड multiples of 90 degrees or pi by 2. For odd multiples of 90 degrees or pi by 2, that is, what is an odd multiple of 90? What is an odd multiple of pi by 2? It is 2n plus 1 into pi by 2, where n is an integer. ये बात सबको समझ में आती है ना? 2n plus 1 odd होगा,
फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n. Yes, n को sir. तुमने 1 डाल दिया 3 हो जाएगा, 2 डाल दिया 5 हो जाएगा, -1 डाल दिया तो -1 आ जाएगा, right? So for odd multiples of 90 degrees, what is happening, what did we observe? For example 90 के लिए ही क्या ऑब्जर्व किया हमने ये ऑब्जर्व किया that trigonometric ratios will interchange sine and cos, tan and cot and sec and cosec. What is so special about odd multiples of 90? See, when you rotate by 90, what happens? X converts to y, adjacent to opposite. When you rotate by 270, once again from x you move to y. कहीं ना कहीं हम एक साइड से दूसरी साइड, मतलब ये फील करोगे कि अगर मैंने एडजेसेंट से स्टार्ट किया तो अगर मैंने ऑड मल्टीपल ऑफ 90 लिया, आई विल एंड अप ऑन द ऑपोजिट साइड, करेक्ट? 90 का अगर मैंने मान लो -90 रखा, -90 मैंने यहां से स्टार्ट किया, आई विल एंड अप ऑन y एक्सिस अगेन. x एक्सिस से हम y एक्सिस पे ही पहुंचेंगे, कंफर्म है. लेकिन अगर मैंने इवन मल्टीपल लिया, जैसे मान लो मैंने पाई ले लिया, x एक्सिस से स्टार्ट किया, x एक्सिस पे ही पहुंचे. मान लो मैंने 360 लिया, 360 x एक्सिस से स्टार्ट किया, इनफैक्ट अब वहीं पहुंच गए, राइट? तो इसीलिए जब तुम x एक्सिस से y एक्सिस पहुंच रहे हो, एडजेसेंट टू अपोजिट पहुंच रहे हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टाइप का कन्वर्जन है कि sin कन्वर्ट्स टू cos, cos कन्वर्ट्स टू sin, tan कन्वर्ट्स टू cot, cot टू tan एंड सो ऑन. लेकिन अगर हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 होते, व्हाट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90? फॉर इवन multiples of 90 degrees, that is, क्या होते हैं इवन मल्टीपल ऑफ 90? 2n pi by 2. 2n 2n into into pi by 2 और n pi. pi n. इवन मल्टीपल ऑफ 90 का मतलब हुआ 180 का मल्टीपल, है कि नहीं भाई? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्रीज का मतलब हुआ एनी मल्टीपल ऑफ 180 डिग्रीज, बिकॉज 180 इज ऑलरेडी इवन मल्टीपल ऑफ 90. तो इस केस में तुमने क्या ऑब्जर्व किया? देखो 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा रिमेन्ड साइन थीटा. डोंट डू दिस भाई, ये काम मत करना. मैं फिर कह रहा हूं, इस क्लास को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज जो है इसके रिpercussions जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे. 12-15 का मतलब ये नहीं है कि आप भाग जाएंगे, क्योंकि अगर आप भाग जाएंगे तो आपको मैथ्स नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तो भागिए मत, bear with me, just 5-10 minutes more, ठीक है? For even multiples of 90 degrees, what will happen? क्या हो रहा है देखो ना, 180 माइनस थीटा वाले केस में क्या हुआ? साइन रिमेन साइन, कॉस रिमेन कॉस, यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है रेशियोज वो चेंज नहीं हो रहे हैं. चेंज नहीं हो रहा है, वो वही रह रहा है. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अब बार बार हम इसको डिराइव करने को मतलब नहीं है. अगर हमने ये चीज सीख ली, ऑड मल्टीपल देखना है, इवन मल्टीपल देखना है, तो काफी कुछ हो चुका है. साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ ये हमें पता चल गया, साइन साइन ही रहा या कॉस में कन्वर्ट हो गया पता चल गया. व्हाट इज लेफ्ट, बचा क्या है? इट इज जस्ट द साइन कि फाइनली जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. सो टू फाइंड आउट साइन, to determine sign, simply use sign convention. हमने साइन कन्वेंशन इसी दिन के लिए पढ़ा था भाई. क्या होता है साइन कन्वेंशन? अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा. फॉर एग्जांपल, तुम एग्जांपल देखो और इससे समझने की कोशिश करो कि हमने क्या किया है. मैंने तुमसे पूछा कि क्या होगा भाई साइन 270 माइनस थीटा. व्हाट विल बी द अलाइड एंगल फॉर्मूला फॉर साइन 270 माइनस थीटा? सो फर्स्ट थिंग यू ऑब्जर्व, लुक एट दिस नेगेटिव cos थीटा. यस, It is in 270 third quadrant, so negative sign. नेगेटिव साइन आएगा. 270 क्या है? 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, राइट? दिस इज 3 into 90. ये बात सबको दिखाई दे रही है? Yes, This sir. is 3 into 90. Odd multiple of 90
होने की वजह से हमने क्या सीखा, साइन विल कन्वर्ट टू कॉस, कॉस आंसर Negative डेफिनेटली cos. कॉस में आएगा। लेकिन अब डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस, तो तुम्हें केवल थीटा को एक्यूट मान के ये सोचना है कि 270 माइनस एन एक्यूट एंगल किस सर क्वाड्रेंट पे सर लाई करेगा। सर मेरा थर्ड वही क्वाड्रेंट डाउट पे था होगा। तुम्हारा क्या है? सर, मेरा डाउट था कि ये सब तभी ट्रू है ना जब थीटा को एक्यूट माने। यस यस, थीटा को मैंने एक्यूट माना है, और चिंता मत करो, थीटा कुछ भी हो ये फॉर्मूला सही होगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मैं तुम्हें भी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, बट पहले ये बताओ कि जैसे तुम्हें समझ में आ अगर रहा ये है? वाले थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्मूला में में होगा तो कॉस, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तुम्हें बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे माइनस आएगा? ये बात समझ में आ रही है? अगर थीटा एक्यूट है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, बिकॉज हम हाँ सर, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये बात समझ में आ रही है? फॉर हाँ एग्जाम्पल सर, हाँ मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज साइन 270 माइनस, तुम्हारा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे अगर बड़ा एंगल हो तो क्या हो? हाँ सर, यही है doubt. What will be Then sin 180. 270 minus 120? According to our formula, it should be minus cos 120. ये तो होना चाहिए। What is sin 270 minus 120? It is sin 150 degrees. ठीक? Cos 120 degrees की वैल्यू कैसे निकालोगे? You have both methods, 180 minus theta, 90 plus theta. मान लो मैं 180 minus 60 लिख रहा हूँ उसको। What is Hence cos cos 60. 180? Cos 180 minus theta minus cos theta होता है। तो देखो ये वापस ये प्लस बन गया, दिस इज प्लस cos 60, आंसर इज हाफ। समझे? तो साइन 150 प्लस हाफ आ गया ना, अपने आप उसने अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव बना लिया, बिकॉज दो बार नेगेटिव साइन आ गया ना, माइनस तो हमने लगाया ही था और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो चिंता मत करो, तुम थीटा को एक्यूट मानकर आंसर निकालो, लेकिन तुम थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो मैं लिखा एक मिनट, कौन कॉल कर रहा है अभी? वेटिंग रूम में है क्या? नहीं ना? What will be cos 360 minus theta? Tell me, cos 360 minus theta क्या होगा? सर cos नेगेटिव Cos थीटा theta. के बराबर ही हो जाएगा वो। सर cos थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव cos थीटा। प्लस cos theta। एक्सप्लेन करो उसको, क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट cos सर, और आपको नेगेटिव 360 थीटा हो इवन जाएगा ना मल्टीपल है। सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो Fourth cos quadrant में फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 360 इवन मल्टीपल है। 360 360 और even is multiple है even तो- multiple of हाँ। 90, तो cos का cos ही रहा, पहली बात। दूसरी बात, 360 minus theta if theta is acute is in fourth quadrant में cos positive होता है। बिल्कुल सही है, cos 360 minus theta will be positive। ठीक है ना? और एक और देखते हैं क्या होगा, tan 180 plus theta। सर Tan पॉजिटिव theta. tan Positive थीटा। tan थीटा सर, tan थीटा ASTC plus tan theta। 180 is Even even multiple. multiple of 90, tan will remain tan। 180 plus theta is in third quadrant, so it will remain tan theta। Huh? What will be हाँ सर, cot 450 minus theta? Positive cot theta. tan हो जाएगा, ऑड मल्टीपल। Yes, sir. क्या हो रहा है? बहुत मिस करो तुम लोग यार, ध्यान दो। 450 5 into 90 odd multiple, cot will convert पॉजिटिव to tan tan। थीटा रहेगा। cot will convert to tan। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है यार? देखो ना इसको, odd 1 3 5 7, even 2 4 6 8, 90 का कौन सा मल्टीपल है ये देखो, 90 into 5, odd multiple of 90, cot will convert to tan। प्लस और माइनस किस क्वाड्रेंट में? सर प्लस रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट। 450 का मतलब हुआ कि हमने फुल Rotation. रोटेशन किया 360 90 प्लस minus 90 theta. और फिर हमने माइनस थीटा कर दिया, तो हम ऑब्वियसली वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, प्लस tan थीटा है कि नहीं? तो हाँ अब सर, तुम कोई भी अलाइड एंगल फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो। सर तो मतलब किसी भी, हाँ, थीटा की कोई भी वैल्यू रहे, ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। यस, इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। कोई भी वैल्यू, अक्यूट Okay, sir. ऑब्ट्यूज, कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा एप्लीकेबल।
इनफैक्ट कुछ और चीजें ऑब्जर्व करो. व्हाट अबाउट 360 प्लस थीटा, यानी कि cos थीटा ओनली 2 पाई प्लस थीटा. थीटा हो जाएगा फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा का मतलब हुआ 1 फुल रोटेशन एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं है कि वो थीटा के इक्वल है, दोनों एंगल्स अलग अलग है, लेकिन देखो ट्रायंगल सेम बनने वाला है, एग्जैक्टली सेम. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2 पाई प्लस थीटा will remain same trigonometric ratio of theta. मतलब sin 360 plus theta will remain sin theta. Cos 360 plus theta will remain cos theta. क्यों? क्योंकि एक रोटेशन ही तो है. अच्छा, एक के बजाय में 2 रोटेशंस किए, 2 के बजाय में 3 रोटेशंस किए. In general we can write, in general हम क्या लिख सकते हैं? In general, fourth observation, that trigonometric ratio of 2n pi plus theta will remain trigonometric ratio of theta. मतलब क्या हुआ? What is 2n pi? What is 2n pi? 2n pi multiple of 180. Even multiple of 180. Even multiple of 180, or you can say that is multiple of 360 degrees. So if you take any multiple of 360, for example, मैंने 2 rotations कर लिए भाई, 2 rotations और प्लस थीटा, तो पहुंच तो गए थीटा पे ही ना यार. हमने अगर 2 rotations किए भाई, फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूं साइन 750 डिग्रीज. ये बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है, लेकिन हमको पता है कि यहाँ पे हम रोटेशंस देखें, 2 रोटेशन कंप्लीट हुए हैं, 720, 360 प्लस 360 और प्लस 30. तो अब 720 डिग्रीज का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हमने 2 फुल रोटेशंस किए, उसको हटा दो. सिंपली आंसर इज साइन 30 डिग्री. वैसे भी ये 90 का इवन मल्टीपल है, हमको पता है साइन विल रिमेन साइन. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा. आंसर इज हाफ. श्रेयस है क्या? यस श्रेयस, tan minus 390 क्या होगा बताओ, सोचो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan minus 390? ये भी मैग्नीट्यूड में बड़ा एंगल है. इसको मैं लिख दिया ऐसा, -360 प्लस -30. मैंने ऐसा क्यों लिखा? व्हाट इज -360? -360 इज 1 फुल रोटेशन. अरे भले ही क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, क्या फर्क पड़ता है? -360 डिग्रीज इज 1 फुल रोटेशन. अब बताओ नेगेटिव tan थीटा। नेगेटिव tan 30 या tan -30, सिंपली जो एंगल है वही यहां लिख दो। -360 + 360 720 -720 सबको निकाल दो क्योंकि वो फुल रोटेशन है, उनको हटा दो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम ही रहेगा। व्हाट इज tan -30? -1/√3 minus tan 30 यानी आंसर इज -1/√3, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot 225 degrees? What is the value of cot 225 degrees? बताओ, सोच के बताओ। Cot 180 plus 45. सर cot 45। आंसर तो tan में आएगा, cot में नहीं आएगा। tan में क्यों आएगा भाई? cot में आएगा। इवन Positive 180 cot + even 45 यार करेंगे। तुम लोगों ने बहुत पका दिया है सही में यार। इतनी देर से इवन ऑड समझ ही नहीं आ रहा है। 180 is even multiple of 90। इवन है तो भैया Cot वही 45 है। है। cot So answer is 1. सर मैं 170 माइनस कर रहा था। 170 minus 270 सर। 270, हाँ 270 माइनस करेगा तो हाँ तो ठीक है, tan 45 भी 1 ही होता है, लेकिन मैं अगर 180 करूंगा तो cot का cot ही रहेगा ना, ठीक है। हाँ सर। What is the value of sec 300 degrees? आराम से सोच समझ के सभी लोग करो ट्राई। जो बोल रहे हैं वो बोल ही रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी ट्राई करते सर हैं। नेगेटिव cosec Negative 30। cosec सर नेगेटिव cosec 30। cos 30 Negative cosec 30. नेगेटिव cosec 20 -2। वेट That's sec 60 नेगेटिव किस खुशी में आता है?
सर पॉजिटिव क्यों है। तुम लोग इतने फोर्थ खुश हो? क्वाड्रेंट नेगेटिव में इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। सर फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव में cos और sec पॉजिटिव होता है भाई, तो नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? सर सॉरी तुमने कोसेक अगर सर 270 सेक प्लस 60 हो 30 जाएगा। हाँ सर कोसेक 270 प्लस 30 30 लिखा कोसेक तुमने 30 ना, 270 प्लस 30 लिखा, राइट? राइट। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है भाई? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ। Fourth quadrant. तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब तुमने 270 यूज किया है, 270 कौन सा मल्टीपल है? ऑड। सर ऑड कोसेक तो We can cosec वाली बात also तुम्हारी take सही sec थी, 60 right. बट तुम माइनस क्यों बोल रहे हो यार? हाँ सर Sir, सॉरी। we can write it as sec 60 also right. Yes, we can write it as sec 60 also. 360 minus 60 वो भी कर सकते हैं. So sec 300 degrees is plus 2. Plus 2. Right. What is sine 270 degrees? What is sine 270 degrees? Tell me. sin 90 डिग्री माइनस sin 90 माइनस साइन 90 डिग्री। -1 Negative 1. नेगेटिव -1. किसी ने अगर 180 प्लस थीटा यूज किया हो तो बिल्कुल यूज कर सकते हो। साइन 180 प्लस थीटा, 180 इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन का साइन ही रहेगा। और माइनस साइन क्यों? थर्ड हाँ मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी मान लो। तो माइनस साइन 90, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस साइन थीटा मतलब हो गया -1, -1 है ना। तो ये है भाई, ये हमारे अलाइड एंगल फॉर्मूले हैं। और ये मैंने क्यों पढ़ाया तुम्हें पहले? मैं चाहता तुम्हें कंपाउंड एंगल फॉर्मूला पढ़ाता जो 11th में, sin a प्लस बी, उसमें डालते और आंसर आता, sin 90 प्लस थीटा सब निकल जाता है। उतना टाइम नहीं हमारे पास, हमको ये ऑब्जर्वेशंस याद करने पड़ेंगे। हमको अगर इन एंगल्स जो एंगल्स मैंने मेंशन किए हैं 120, 150, 225, 300, 270, इनकी वैल्यूज अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये याद नहीं है तो विद इन सेकेंड्स हमको इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में तो बस इतना टाइम नहीं होगा कि तुम हर वैल्यू को डिराइव कर रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक असाइनमेंट आज मिलेगा और वो असाइनमेंट सबको सॉल्व करना है और सबमिट करना है सभी को। ओके, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस बार फिर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट असाइनमेंट जो अभी मिलेगा तुमको, वो सभी लोगों को सॉल्व करके सबमिट करना है विदाउट फेल। सर डेडलाइन? डेडलाइन नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करो। ओके सर। तो क्या सबमिट करना है? सर मतलब ट्यूसडे हो ट्यूसडे गया से तो पहले। मंडे नाइट तक इसको सबमिट करो, ठीक है। होमवर्क ग्रुप बनाई हुआ है अभी इस ऐप में तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो होमवर्क ग्रुप में सबमिट करो। और जो ग्रुप है ओके, उसमें सभी लोग एडेड है ना भाई? सर मिनारी सर ने बोला था कि सर वो आज या कल तक जो है क्लास आज रात तक मिल जाएगा। अरे वो ठीक है, तो वो होता रहेगा काम, तो अपना काम चालू रखो, है ना। ये